Dear viewers, Namaskar. Padmanabha Mishra is a proud member of the SAIL Rourkela Steel Plant family who has made our steel city shine by securing the 176th rank in the UPSC Civil Services Examination 2023. Now, what makes his journey even more inspiring is his deep-rooted connection to our city. Padmanabh's father, Mr. Trilochan Mishra, used to work at the roll shop department of RSP before retiring in 2020. And his mother, Mrs. Minati Mishra, is a homemaker. But let's talk about Padmanabha's own journey from himself. Hello, Padmanabh. First of all, many congratulations on this great feat of qualifying UPSC Civil Services Examinations. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है, मतलब जब सबसे पहले आपने सुना कि आपने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया है तो आपका पहला रिएक्शन क्या था और कैसा लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड अगर मैं उसके बारे में बोलूँ तो आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर उस दिन दोपहर करीब रिज़ल्ट आया था। मैं वेट करके फ़ोन रिफ़्रेश कर रहा था, तो जब आया तब मैंने पहला अपना नाम सर्च किया। तो पहला तो होता है कि देखना कि अरे लिस्ट में है कि नहीं है। तो फिर मैंने पहला जब नाम देखा कि है, उसके बाद मैंने लेफ़्ट की तरफ देखा और मैंने रैंक देखा। तब 2 सेकंड के लिए मुझे बिलीव नहीं हुआ ये मैं हूँ कि कौन हूँ। तो वो मोमेंट बहुत सरियल होता है क्योंकि हम जब से शुरू करते हैं प्रिपरेशन करना तब से वही देखते हैं कि कब रिज़ल्ट में नाम आएगा। तो जब आया फिर मुझे अच्छे से याद है, मैं नीचे गया तब उस टाइम पे मेरी पूरी फैमिली साथ में थी। माई ब्रदर, माई सिस्टर इन लॉ, ऑल ऑफ देम वे विजिटिंग। तो एवरीवन वाज वेरी मतलब बिटर स्वीट मोमेंट था सबके लिए, बिकॉज एवरीवन वाज हैप्पी बट ऑल्सो दे वेर वेरी, क्योंकि ये एग्ज़ाम में सिर्फ कैंडिडेट या एस्पिरेंट ही मेहनत नहीं करता, उनकी पूरी फैमिली, क्योंकि उनको सपोर्ट देना होता है। तो इट्स अ जॉइंट कंट्रीब्यूशन। तो एवरीवन वाज वेरी हैप्पी और मैं तो मतलब उस मोमेंट में वो 5-6 मिनट में बिलीव नहीं कर पाया क्या चल रहा है। तो इट वाज अ वेरी सरियल एक्सपीरियंस फॉर मी। Can you share with us your journey from small industrial city of Rourkela to qualifying the prestigious UPSC Civil Services Examination? Sure, I was born in Rourkela and I spent 12 years of my schooling in Ispat English Medium School, which is the school of RSP SAIL. And then I did my graduation in electrical engineering from NIT Rourkela. After that, I decided that I wanted to pursue a course in management and I went to do my master's from IIM Indore. And subsequently, I again worked for 2 years in a corporate banking institution. But then in 2022, I realized that I had to ignite the dream of pursuing a career in civil services, and I quit my job. And then I delved into whole time into civil service examination, and God has been kind to give me what I have today. That's quite an inspiring journey. Okay, so you have done your BTech from NIT Rourkela and you have done your MBA from the prestigious IIM Indore, and then you've also worked for 2 years in American Express. Then why did you opt for a civil services and why not continue with the corporate job which would have given you a lucrative salary, some foreign tours and whatnot? Surely. So when I joined my company, what I realized was, yes, I would agree with those incentives that there is a lot to learn. In fact, if someone wants to exponentially grow in a professional ladder, then a corporate job is one of the best offerings. And as regards the foreign tours, I had a semester exchange during my post-graduation wherein I had went to France, and there's some realization happened to me that maybe I wanted to work in India more. Because India is a land of diversity, we have as much natural beauty, we have as much cultural enrichment which is present in our country. So I wanted to work in India. That is the realization that I had. And second, as regards कि क्यों मैंने corporate experience के बाद civil service, तो मैंने ये realize किया कि मैं अपने career को एक 2-dimensional graph में plot करूँगा। तो एक एक्सिस पे अगर मैं प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन को रखता हूँ तो दूसरे एक्सिस में मैं पर्सनल सेटिस्फैक्शन को रखूँगा। मुझे ये फील हुआ पर्सनली कि जो मेरा प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन है वो कॉर्पोरेट एक्सपोजर में मुझे बहुत हाई मिल रहा था, लेकिन जो मेरा इम्पैक्ट था वो शायद कंपनी के स्टेक होल्डर तक ही लिमिटेड था।
पर मुझे लग रहा था अंदर ही अंदर कि आई वॉन्ट टू हैव अ जॉब जहाँ पे मैं ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल के लाइफ्स को टच कर सकता हूँ, कुछ पॉजिटिव वे में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. एंड टू मी सिविल सर्विसेज इज़ द बेस्ट फिट इन दैट डायरेक्शन एंड हेंस आई टुक द डिसीजन. Great. So, how did growing up in Rourkela Steel City influenced your aspirations and career choices? Rourkela, as we all know, is a very cosmopolitan city. Even in my school, we had my peers, my friends who were from different parts of our country, speaking different languages, different cultures, and that somehow gave me an edge wherever I went, be it in India or even abroad. It allowed me to imbibe that multicultural spirit where I could adjust to any place and any culture. So one thing that has helped me directly in that is from Rourkela, and secondly, growing up, NIT had a profound influence on me because I remember when I was a small kid, I used to ride my bicycle to NIT, and there I used to see a steam engine in front of the mechanical department, and it inspired me to pursue a career in engineering. So that way I owe Rourkela a lot in my career journey. That's great. वैसे सिविल सर्विसेज परस्यू करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन कहाँ से मिली? क्या सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया? और आपने IIM इंदौर से MBA भी किया है, तो वो जर्नी आपका कैसा रहा? और वो IIM इंदौर से पढ़ने का जो जर्नी था वो कैसे आपको मोटिवेट किया UPSC के लिए? तो ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने अपने थर्ड ईयर में ही मेरे दिमाग में ये ख्याल आया था कि जो भी मेरा करियर है उसको मैं ऐसे लेना चाहता हूँ कि मुझे डाइवर्स एरियाज़ में काम करने का मौका मिले. और मुझे लगा मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जो मुझे केवल फाइनेंस नहीं, मुझे मार्केटिंग हो, चाहे स्ट्रैटेजी हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, सब चीज़ में मेरी मदद करेगा. और एक चीज़ थी, IIM इंदौर के कोर्स में एक करिकुलम है जहाँ पे हमें 2 हफ्ते 10 to 15 डेज़ एक गांव में जाके रहना पड़ता है. तो वहाँ पे वो रूरल इमर्शन प्रोग्राम उसका नाम था. उसमें क्या होता है, इट्स इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ. तो स्वच्छ भारत अभियान जो होता है, हमें उसका एक सर्वे करना पड़ता था. तो जब मैं वहाँ गया 10 दिन, सलकनपुर मुझे नाम याद है, ग्राम पंचायत था सीहोर डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश का. तो वहाँ पे मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि जो भी हमारी नॉलेज है वो हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसे एक पब्लिक सर्विस के एंगल में यूज़ कर सके तो उससे नॉट जस्ट प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन, जो कि मुझे तो काफ़ी हद तक मिल रही थी, बट एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी मिल सकती है. तो मुझे लगता है कि ये उसी चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया सिविल सर्विसेज के लिए. ग्रेट. वैसे आपकी सिविल सर्विसेज जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, मुश्किलें आई होंगी, तो क्या आप ज़रा उनके बारे में बता सकते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आई और कैसे आपने उन बाधाओं को पार करके फाइनली UPSC क्वालिफाई किया? जी, एक चीज़ जो मैंने पहले ही डिसाइड कर ली थी वो कि मैं घर से रह के ही प्रिपेयर करूँगा. आई विल नॉट जॉइन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपने कंफर्ट जोन में ही रह के प्रिपेयर कर सकता हूँ. तो स्टार्टिंग में मुझे लगा कि वो एक चैलेंज था डायरेक्टली कि गाइडेंस क्या प्रिपेयर करना है, कौन से मटेरियल्स फॉलो करने हैं. जो मेरे हिसाब से आजकल के दुनिया में इंटरनेट एक बहुत प्रोफाउंड रोल प्ले करता है कि जो भी हमारे डाउट्स हैं हम वो इंटरनेट से देख के खुद को गाइड कर सकते हैं. ये तो हो गया एग्जामिनेशन, बट आई थिंक और एक चैलेंज रहता है जो केवल मैं नहीं, सब एस्पिरेंट्स फेस करते हैं. वो होता है क्योंकि ये जर्नी हमारे एप्लीकेशन स्टेज से स्टार्ट करके रिजल्ट आने तक इट गोज़ फॉर 12 to 15 मंथ्स. तो उस मोमेंट्स में आपको कभी ये भी फील हो सकता है, सेल्फ डाउट्स आ सकते हैं, क्या मैं कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मेरा हो जाएगा, नहीं होगा. तो ये सारी चैलेंजेस होती है जो अपने हेड में ही होती है, जो हमें खुद से डील करना होता है. उसको ओवरकम करने के लिए मुझे लगता है एक सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो या फैमिली के साथ हो, जो कि आई वॉज़ लकी इनफ कि माई फैमिली वॉज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव. मेरे फ्रेंड्स थे, उनमें से कुछ थे जो मेरे साथ ही प्रिपेयर करते थे. उनके साथ बात करने पे थोड़ी इट यूज़ टू रिलैक्स मी. एंड देन आई ऑल्सो हैड फ्रेंड्स हु वर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज, तो उनके साथ बात करके भी मुझे अच्छा लगता था. तो आई थिंक सपोर्ट सिस्टम हेल्प मी अ लॉट. ग्रेट. So Padmanava, you are also a proud alumni of Ispat English Medium School of Rourkela Steel Plant, and you have also topped ISC examination 2014. So how do you think your education at Ispat English Medium School prepared you for the rigors of UPSC examination and the responsibilities that comes with being a civil servant? Sure, I would take it in two parts. So first I would say the direct impact. Now what happens is, if I speak about my own school, the academic bent
of the teachers is very high. They propel us to excel not just in extracurricular activities but the core academics as well. And अगर हम सिविल सर्विस एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें सिलेबस में हमें बेसिक सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मैंने स्कूल में वो घंटे बिताए होंगे स्टडी पे फोकस करके, वो डायरेक्टली हेल्प करते हैं. और एक चीज़ होती है जो इनडायरेक्टली भी हेल्प करती है, वो है कि वेन एवर आई यूज़ टू गो टू स्कूल, आई रियलाइज दिस नाउ, बट एक डिसिप्लिन आ जाती है क्योंकि हमारे टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते थे क्लास टाइमिंग्स को लेके, पंक्चुअलिटी को लेके, ऑनेस्टी को लेके, इंटेग्रिटी को लेके. क्योंकि मुझे कभी भी मेरे 12 सालों में ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे साथ कुछ भी अनफेयर तरीके से हुआ है. बहुत ही फेयर लगा था मुझे मेरे स्कूलिंग ईयर्स. तो वो चीज़ अभी लगती है कि कहीं ना कहीं एक सिविल सर्विस में आपको ऑनेस्ट होना पड़ता है, इंटेग्रिटी आपकी स्ट्रांग होनी पड़ती है. चाहे कुछ भी चैलेंजेस हो, आपको जो भी आपको लगता है कि नहीं ये पब्लिक के लिए सही है, वो आपको करना पड़ेगा. आई थिंक वहाँ पे मेरी स्कूलिंग एजुकेशन मुझे बहुत हेल्प करेगी. Okay, so can you share any memorable experiences or anecdotes from your childhood days in the Steel City? Sure. I have spent, I think, 22 years of my life if I include the graduation, but core childhood memory 14-15 years, one thing I can say is every year I used to enjoy Durga Puja a lot, be that the pandal hopping at night or for the Durga Puja Visarjan which used to happen. I have enjoyed that thoroughly because even during college days what used to happen was I stayed in Rourkela, but my friends who went outside Rourkela, all of us used to come together during Durga Puja. So that is very fond memory of mine. Also, I think one more thing would be I love riding bicycle a lot. So whenever I used to get time in childhood, I would take my cycle and roam around the streets of the different sectors. I used to stay in Sector 20. So Sector 20, 19, Ambagan, do a roundabout from VIP Road. So that is a very fond memory of mine. That's cool. Can you share some extracurricular activities, your hobbies and your favorite pastime? Sure. So while preparing for UPSC, at least there was not a lot of time to focus on a lot of activities, but one thing I made sure was to emphasize on my physical health. So I like working out, but then whenever, even during exam, I did not get a lot of time. So I made sure that I could at least jog for 15-20 minutes. That was one thing I enjoyed. And apart from that, I also like reading non-fiction books. And yes, I spent my time in this manner. पद्मनाभा, देखिए यूपीएससी क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं होता है, और जैसे कि आपने फैमिली का जिक्र भी किया था, तो क्या आप कुछ बता सकते हैं कि आपकी फैमिली की कंट्रीब्यूशन कैसे रही आपकी पूरी इस जर्नी के दौरान? नहीं, डेफिनेटली मैं तो इट वुड नॉट बी फार फेचेड टू से कि अगर वो उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो शायद मेरा सक्सेस आज कुछ भी नहीं होता. एंड ये सिर्फ मैं सिविल सर्विस तक लिमिट नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरी फैमिली का कंट्रीब्यूशन, मेरे छोटे बड़े जो भी अचीवमेंट्स है लाइफ में, हर किसी में एक पिवटल रोल प्ले किया है. अगर मैं स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज के बारे में बताऊँ तो मुझे याद है, तो ऐसे होता था कि my parents, my father and mother, so there used to be a time when my brother had a small baby, तो मेरी मदर को जाना पड़ा and my father and I stayed together. तो उस टाइम पे, and it was during the peak time, तो उस टाइम पे एक फैमिली का सपोर्ट रहना बहुत एसेंशियल था. एंड because of my father's contribution, and if I will say about this about him, कि वो उनको मैंने, he was an employee at RSP, and मैंने उनको बचपन से देखा है, his hard work, his ethic, that has also inspired me in some way, and the same goes for my mother as well. तो एक तो उनका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है जो वो हमें सपोर्ट करते हैं, एंड इनडायरेक्टली हम उनके एक्शन से इंस्पायर भी होते हैं. तो दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फॉर मी. बिल्कुल. अभी अभी आपने आरएसपी का जिक्र किया, तो आप ज़रा बता सकते हैं कि आप राउरकेला स्टील प्लांट को किस तरह से देखते हैं? नहीं, आरएसपी तो मैं बताऊंगा कि इट हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ. जैसे कि मैंने बताया, माई फादर वर्कड इन आरएसपी. मैं खुद आरएसपी के स्कूल में, आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल. इवन माई ब्रदर हैज़ बीन अ स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल. तो पर्सनली आरएसपी हैज़ टच्ड मी वेरी मच. बट मैं आरएसपी को अगर उससे बियॉन्ड भी देखो, फ्रॉम अ टॉप लेवल व्यू, तो आरएसपी इज़ अ ग्रोथ इंजन फॉर नॉट जस्ट राउरकेला बट ऑल्सो द एरियाज अराउंड इट. अगर हम डायरेक्टली देखें एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट देना, या फिर CSR एक्टिविटी के तहत सबब्स में कंट्रीब्यूट करना, लोगों के, मार्जिनलाइज्ड पीपल के लोगों के लाइफ को अपलिफ्ट करना,
तो आई होल्ड RSP इन वेरी हाई रिगार्ड इन दैट मैनर. एंड एक चीज़ मैं और ऐड कर सकता हूँ कि जिस तरीके से हमारा टाउन है एक मुझे लगता है राउरकेला, एंड बिकॉज ऑफ RSP इट्स लाइक अ ब्रीदिंग सिटी. एंड एनेक्डोटली मैं ये बता सकता हूँ कि चाहे कोई कहीं भी चला जाए, माई फ्रेंड्स और पीपल हु हैव लेफ्ट राउरकेला इवन 30-40 years, everyone longs to come to Raurkela. And I think that is the charm which not just Raurkela has and RSP has helped create it and develop it. बिल्कुल, और इसीलिए हम कहते हैं हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है सेल. Lastly, what advice would you give to aspiring civil services candidates, especially those from cities like Raurkela who dream of achieving success in the UPSC examination? Surely, for people like me who belong to Raurkela and which is often seen as a hub from where people focus more on core careers like being engineers or doctors or chartered accountants, one thing I would like to say is civil service is a very enriching profession in terms that it will not just give you a steep professional ladder to climb upon, but also it will give you a personal ladder where you can touch the lives of hundreds if not thousands of citizens, and that thing will be unparalleled in most of the professions. And therefore my advice would be that work hard, because there is no substitute to that, and trust yourself. There are two things for any success. One is the hard work part and another is luck part. Luck cannot be controlled, so we can only control the controllables. And on that note, I remember a quote which is from a famous TV series that ever tried, ever failed, try harder, fail better. So yes, that would be my advice. That's great. Thank you Padmanabha for giving your time and coming to RSTV. It was great chatting with you. Thank you for giving me this opportunity. Thank you.